दिल्ली धुरंधर्स बनाम वाइजैक विक्टर्स की टीम युवा कबड्डी सीरीज का 11वां एडिशन डिवीजन 2 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। दोनों ही टीम इस मुकाबले में अपनी आज दिल्ली धुरंधर्स की टीम उतर रही है। शुभम भिदुरी जो सेंटर पोजीशन संभालेंगे, अर्पित नागर उनके साथ राइट इन पे रहने वाले हैं और तीसरे रेडर जो है वो अनुज नेगी है। आज अनुज की बैटल होगी। आज इस खिलाड़ी को चलना पड़ेगा। जर्सी नंबर 99 का ये खिलाड़ी नर्वस 90s में फंस ना जाए। राइट कवर के ऊपर कुणाल बी है, लेफ्ट कवर के ऊपर दीपक पोदार है, राइट कॉर्नर के ऊपर विनोद पाल रहने वाले हैं, तो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दीपांशु कसना हमें नजर आएंगे। निशांत, कुणाल, विशाल, रोहित, गौतम ये खिलाड़ी जो फिलहाल सब पे, लेकिन जब कोच चाहेंगे इन्हें बुला लिया। 7 for the Vizag Victors. It's Gali Lakshma in the center coming in with those raids along with Teja and Pirati. Teja of course had a wonderful performance yesterday along with Pirati who had a super 10. Let's look at the defense of the team that needs to strike today. That is Maladi and Venkata on the covers. And the right corner, it's Pavan along with Venkatesh in the left corner. The substitution lineup is Pelleti. The toss here, Vizag Victors winning it. And the Delhi Dhurandhars will be raiding first, which means Ayush. It might be Anuj Negi who comes in for the first raid of this match. इस whistle के साथ हो जाएगा शुरू। The right inside there who was attempted this time. Will he get the left corner and the cover? Beautifully done. Couple of points coming in. And 76 out. तो एक तो दीपांशु को लेके जाया गया है, एक कुणाल को भी बाहर की राह दिखा दी गई है। थोड़े से डेस्परेशन की ये पॉइंट हमें लगे। पहले तो कवर्स की पोजीशन के ऊपर से शायद कॉर्नर को ये संकेत मिला कि डैश आएगा, इसीलिए उन्होंने एंकल होल्ड पे जाने का। For the first raid of the game here, the do-or-die raid, hold on to his ankle and the support comes in and Arpit is pinned down. Vizag Victors. It eventually was a very tough situation for Arpit as he went straight away into the first do-or-die raid of the match. The covers just didn't give the hold of the game. सीधे dive लगाई, उनकी knee को पकड़ा और of how they talk to each other and move around with the situation. Yesterday they did a better job here. Can the raider stretch his arm out? Yes, he has crossed the midline and this could be a big one here, Ayush. The first points coming in for Delhi. हमारे मारवाड़ी में एक बहुत बड़ी कहावत है रायन, और ऐसा कहा जाता है कि मना करे जन जावे नहीं जावे तो पाछा आवे नहीं। मतलब एक बार आपको कह दिया गया कि आप जाइए तो आप जाते नहीं है शहर, जब आपको कहते हैं कि शहर से वापस आ जाइए तो आप वापस आते नहीं है। अब तक तो खाता खुल नहीं रहा था और खाता खुला तो मल्टी पॉइंटर के साथ 2 रेड पॉइंट के साथ यहाँ शुरुआत कर ली है दिल्ली की टीम ने। So even if Anuj comes in for the raid, he's going to start coming in a situation where his team is trailing, and here we go. Kali Lakshma Reddy is confident. He's gotten into the lobby and he's going to have to go out as well. एक एडवर्टीजमेंट आता है ना रायन, कभी कुछ ना करके भी देखिए, और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की टीम ने कुछ ना करके ये पॉइंट कमाया। सुपर टैकल की सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है डिफेंडर्स को, यहाँ विनोद ने क्या किया, सिर्फ पीछे हटे और लॉबी का इस्तेमाल कर लिया रेडर ने, जब तक डू और डाई में सफलता पाई थी। Oh, he gets caught this time, and Vizag get a point after quite some time because they had done a good job up until now. And Shubham, who is a talented raider, gets caught onto the thighs. India won. ATM Kamal moment for the Vizag Victors. And Shubham will... नंबर 3 यानी कि तेजस गए हैं रेड लगाने के लिए। एंकल को थिरकाने की कोशिश थी, टो टच करना चाहा, निशांत ने टो को पकड़ के घुमा दिया और अपनी टीम के लिए 2 अंकों का तोहफा फिर से लिया है। अभी दिल्ली की टीम ट्रेल कर रही थी, अब पहुंच जाएगी 1 अंक की बढ़त पे इस सुपर टैकल की बदौलत। Second super tackle, and Tejesh gets caught here by Nishant. A very good tackle who's come back for the Delhi side, and he will look to just break this Vizag defense a lot up now, but they are unbreakable with regards to this. Look at the two of them stopping him, blocking him, and he gets caught up. पहले लेफ्ट कॉर्नर फिर राइट कॉर्नर की तरफ गए, सामने से आया इनकी पोजीशन का फ्रंटल बॉल और तब तक पूरी टेक्टी को पता होगी 3 के घर पे घुसे हैं। अब तक वहां कॉर्नर ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश थी लेकिन आगे हाईवे ब्लॉक है, सुपर टैकल की सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। रेड्डी अभी भी जद्दोजहद करते हुए राइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने अपने आप को पहले स्टैंडिंग पोजीशन में डाला, एंकल को पकड़ के पीछे खींचा और तुरंत
क्षमा प्रार्थी हो चुके हैं। 2 और पॉइंट, 3 में से 3 सक्सेसफुल सुपर टैकल दिल्ली की टीम की तरफ से। डिफेंस आज छा रहा है, इस मैच पे तबाही मचा रहा है। There we go, and this is definitely an India 1 ATM Kamal moment because of the way they went in and fought hard to maintain their super tackle situations record that is 100% in this game. A bit of a jersey pull there, and I don't think he's going to get a big shout out to our friend Navteja at the BCR room who's translated and sent the news via Tanmay. And yeah, look at this. Before we translate that, Delhi take a Durandars. look at this. 2 more points coming in for Jersey Delhi number 12 Durandars. and 9 out. And Arpit crawling his way through, and a good way to start after that all in. कॉर्नर के खिलाड़ी को कहा गया था कि थोड़ा सा डीप रह के खेलना है, लेकिन यहाँ कवर के खिलाड़ी ने गलती कर दी और इसीलिए पूरी टीम को एकाग्रता के साथ खेलता है। उनको आप लगातार रेड पे भेजते हैं, रेडिंग ड्यूटीज दिखाते हैं, लेकिन अभी तो वो मैट पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। मल्टी पॉइंटर है, कितने ये गिनना पड़ेगा। 2 स्टेडियम, लेकिन फिर भी गमले लगे हुए हैं। और सुपर रेड 4 पॉइंटों की, जो रायन ने कहा वही हुआ। बिल्कुल अच्छा खेल दिखाया। शायद ये गोपीचंद का भी कमाल है, जिस प्रकार से वो अपनी टीम के लिए रणनीतियां बनाते हैं वो काम आती है। पहले तो यहाँ जब रेड लगाने के लिए आए थे, बोनस निकाला, इंडिया 1 ATM कमाल मूवमेंट हमें दिखाया, कॉर्नर के खिलाड़ी टूटे, कवर्स भी टूटा। To contest, no review. मिलेगा, मगर 2 जो पॉइंट है रायन, ये गणित थोड़ी समझ में नहीं आई। टैकल के पॉइंट 5 लिखे हुए नजर आ रहे हैं और 3 सुपर टैकल्स हैं, तो 6 तो यही आंकड़े में हो जाने चाहिए थे। Indeed. जिस डू और डाई का रायन जिक्र कर चुके हैं वो आ चुकी है घर। यहाँ बोनस आपको देने का मौका नहीं दे रहा था, एकमात्र विकल्प था टच करने के लिए। और निशांत जब डिफेंस के अंदर है, शांत कर देता है ये खिलाड़ी अपने रेडर्स को। कमाल की डाइव लगाने की स्किल है। तेजस जो रेड लगाने के लिए आए थे, जिनके पास डू और डाई में टच के लिए जाने के अतिरिक्त कोई और विकल्प था नहीं, बैक किक एग्जीक्यूट वो करते। तब तक सबसे पहले तो कॉर्नर के खिलाड़ी ने लेग होल्ड किया, फिर आए निशांत जिन्होंने बैक होल्ड किया। की टीम ने एक ही डुडाई अब तक लगाई है, जिसमें भी सफलता पाई नहीं है। हालांकि इससे पहले दिल्ली की टीम ने जो पहला पॉइंट अपना डू और डाई में कमाया था, वो भी अभी था। 2 नकारी डू और डाई उनके लिए भी आई थी। अद्भुत जंप, तेजेश का आला दर्जे का जंप है ये। सबसे महत्वपूर्ण इस जंप में मुझे जो चीज लगी रायन, वो टाइमिंग थी। Jersey number 11 out. Definitely. And timing was everything with regards to this, and an India 1 ATM Kamal moment as well, because of the way he put through that jump came through. And now Delhi Durandars, a super tackle would definitely help. It's a 10-point affair. Oh, there we go. The substitution was made for that very reason. Gautam, the substitute, gets 2 important points. Delhi Durandars. गुड वर्क इन द डिफेंस। सुपर टैकल सिचुएशन हर बार की तरह इस बार भी काम आती हुई नजर आई है दिल्ली की टीम के लिए। एक तरीके से सोलो टैकल ही कह लीजिए। पहले एंकल को पकड़ के पूरी तरीके से गौतम ने निष्क्रिय कर दिया था रेडर को, फिर अर्पित है। दिल्ली दुरंदर्स की टीम की यही कोशिश होगी कि दोनों खिलाड़ियों को ऑल आउट कर दिया जाए। एक खिलाड़ी को टच मारा, वापस आए। अब इसका मतलब एक ही है, वाइजैक विक्टर के लिए यदि तो अगली डू और डाई रेड है तो फिर रायन एक एज मिलेगी दिल्ली की टीम को। यदि तो डू और डाई की सिचुएशन नहीं है तो बॉक लाइन को पार करके आना पड़ेगा। And there we go. अगर सुपर 10 पूरा करके आए हैं। निशांत हमेशा क्रांति दिखाने वाला ये खिलाड़ी आज एक और हाई फाइव के साथ हमें नजर आया। Yeah, big moment for him. Second one on this edition. Arpit Nagar though getting